Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are studying English class 3 unit 2 lesson 3 the three little goats. As we studied yesterday the whole story part 1. In this story we come to know about that it is the story about three little goats who live in mountains. One day they heard about a wolf who lived near them. They get afraid and they decided to build their house. First they built a house of straw, but the wolf fall down that house. Then they built a house of wood. The wolf also fall that house down. Finally they decide to build a strong house, and then they build a brick house. That was a very strong house. The wolf was not able to break that house, so he decided to enter the house through the chimney. This is the end of part 1 of the three little goats. And yesterday we did question number 2 and question number 4. We left question number 3. Yesterday we did not do this question number 3. Today we are going to do it. The question is, read the story again and answer these questions. Question number 1 is, where did the three little goats live? Where did the three little goats live? कि तीन बकरियां कहाँ रहती थीं? I have noted down the answer in a notebook. First, you have to write Unit 2, Lesson 3, topic The Three Little Goats, Part 1. You have to draw the margin lines on both sides. Question number 1, you will write here question number 1 and then you will write the answer. I didn't write the questions but only the answers on the notebook. The answer is, the three little goats lived in the mountains. The three little goats lived in the mountains. तीन बकरियां पहाड़ों में रहती थीं. Understand? Question number 2 is, what bad news did they hear? उन्होंने क्या बुरी खबर सुनी? And the answer is, they heard about a wolf living near there. उन्होंने एक भेड़िए के बारे में सुना जो वहाँ नज़दीक ही रहता था. Next question number 3 is, when did Tiny Horns go inside his straw house? Tiny Horn कब अपने straw house में गया? And the answer is, in the evening, Tiny Horns went inside straw house for the night. शाम के वक्त टाइनी हॉर्न अपने घर गया रात को सोने के लिए. ठीक है, आपको आंसर नजर आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डिड टाइनी हॉर्न्स वेक अप इन द नाइट? टाइनी हॉर्न रात को क्यों उठ गया? एंड द आंसर इज, व्हेन वुल्फ ब्लू द हाउस शोक देन टाइनी हॉर्न्स वेक अप. जब भेड़िए ने फूंक मारी तो घर हिलने लगा और टाइनी हॉर्न उठ गया. ठीक है बच्चों, 4 ही क्वेश्चन थे और 4 आंसर्स. Now we will do the page number 10. Unit 2, Lesson 4, Sentences, Conjunction. Match the 2 parts to make complete sentences. उन्होंने 2 parts दिए हुए हैं, इनमें से हमने sentences complete करने हैं. ठीक है, फर्स्ट उन्होंने किया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, टाइनी हॉर्न्स कलेक्टेड सम स्ट्रॉ. टाइनी हॉर्न ने कुछ घास फूस जमा की. किस लिए जमा की? एंड बिल्ड अ स्ट्रॉ हाउस, और एक स्ट्रॉ हाउस बनाया. ठीक है, अब हम जो करेंगे वो नेक्स्ट 4 हैं. टाइनी हॉर्न्स वोक अप. टाइनी हॉर्न उठ गया. क्यों उठा? ये फिक्रात उन्होंने दिए हुए हैं. बिकॉज द हाउस वाज शेकिंग, क्योंकि घर हिल रहा था.
बट कुडंट बिलो इट डाउन, लेकिन वो इसको ना गिरा सका। बट टाइनी हॉर्न्स एस्केप्ड, लेकिन टाइनी हॉर्न बच गया। सो दे बिल्ड वन ऑफ ब्रिक्स, इसलिए उन्होंने ईंटों का एक बनाया। अब इस सेंटेंस के साथ जो फिक्रा मैच हो रहा है वो है बिकॉज द हाउस वाज शेकिंग, द टाइनी हॉर्न वोक अप बिकॉज द हाउस वाज शेकिंग। यू हैव टू मैच दिस सेंटेंस विद दिस, ठीक है। द वुल्फ ब्लू डाउन द स्ट्रॉ हाउस, भेड़िए ने स्ट्रॉ हाउस गिरा दिया। बट टाइनी हॉर्न्स एस्केप्ड, लेकिन टाइनी हॉर्न बच गया। और टाइनी हॉर्न बच गया। द गोट्स नीडिड अ स्ट्रॉन्गर हाउस, गोट्स को मजबूत घर की ज़रूरत थी। सो दे बिल्ड वन ऑफ ब्रिक्स, इसलिए उन्होंने ईंटों का एक घर बना लिया, ठीक है। द वुल्फ ब्लू एट द ब्रिक हाउस, वुल्फ भेड़िए ने ईंटों के बने हुए मकान पे फूंक मारी। बट कुडंट बिलो इट डाउन, लेकिन वो इसको गिरा ना सका, ठीक है। इससे आपने मैचिंग करनी है फिक्रात की। आज के लिए इंग्लिश ए का यही है। आपने आंसर क्वेश्चन लिखने हैं कॉपी पे, और नेक्स्ट पेज नंबर 10 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इंग्लिश ए का आज यही होगा। नेक्स्ट कम टू इंग्लिश बी, एज वी स्टडी बिफोर अबाउट नाउन्स। नाउन, व्हाट इज़ नाउन? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम चाहे किसी भी चीज़ का हो वो नाउन कहलाता है। एंड नाउन की 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। किसी भी आम चीज़ को कॉमन नाउन कहते हैं और किसी भी ख़ास चीज़ को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? इट्स डेफिनेशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड, वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन की जगह पे, इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन, उसे प्रोनाउन कहते हैं। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह पे कोई भी लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। मतलब ही, शी, इट, वी, यू, दे, these all are the pronouns. First, जमील is a boy, जमील एक लड़का है। He is a pupil, वो एक शागिर्द है। pupil मीन शागिर्द। अब यहाँ पे जमील है, यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया कि वो एक शागिर्द है, तो वो का जो लफ्ज़ ही इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोनाउन, ठीक है। जमील इज़ अ नाउन। अब जमील की जगह पे ही उन्होंने इस्तेमाल किया तो ये प्रोनाउन। माई नेम इज़ तारक, मेरा नाम तारक है। आई एम हेल्दी, मैं सेहतमंद हूँ। आई मीन मैं, मतलब तारक जो है उसके लिए आई यूज़ किया गया है, तो आई इज़ अ प्रोनाउन। आई एंड माई सिस्टर गो टू स्कूल, मैं और मेरी बहन स्कूल जाते हैं। मतलब मैं और मेरी बहन के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? वी आर पीपल्स, हम शागिर्द हैं। वी which is used, the word which is used instead of noun is called a pronoun. We is a pronoun. Anisa is my daughter, अनीसा मेरी बेटी है। She goes to school, वो स्कूल जाती है। यहाँ पे अनीसा की जगह पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है? she is a pronoun. I have a dog, मेरा एक कुत्ता है। अब कुत्ते के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? इट इज़ ब्लैक, ये काला है। इट इज़ अ प्रोनाउन। नवीद एंड नासिर आर ब्रदर, नवीद और नासिर भाई हैं। दे आर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी हैं। दे को किस लिए इस्तेमाल किया गया? नवीद और नासिर के लिए, तो दे इज़ अ प्रोनाउन। नसरीन इज़ अ वुमेन, नसरीन एक औरत है। शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। अब शी किस लिए इस्तेमाल हुई है? नसरीन के लिए बताया गया है कि वो एक डॉक्टर है। शी इज़ अ प्रोनाउन।
मुनीर इज़ अ डॉक्टर, मुनीर एक डॉक्टर है। ही ट्रीट्स द पेशेंट्स, वो मरीज़ों की का इलाज करता है। ही इज़ अ प्रोनाउन। मिस्टर रशीद इज़ अ मैन, मिस्टर रशीद एक आदमी है। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद हैं। ही इज़ अ प्रोनाउन। रूहा इज़ अ गर्ल, रूहा एक गर्ल लड़की है। शी इज़ अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। शी मीन pronoun. These all are the pronouns. The word which is used instead of a noun is called a pronoun. ठीक है, आपने pronoun की हेडिंग लगा के नीचे उसकी डेफिनेशन लिखनी है, नीचे एग्जांपल्स देनी है। कल नेक्स्ट टेबल में आपको ये दूंगी। ठीक है, आज के लिए आपका यही काम है। अल्लाह हाफिज़।